So basically topic 1 and 2 we have completed in the previous lecture. So आज हम लोग topic 3 पढ़ेंगे. Okay. So equal chords and their distance from the center. Before that there is a theorem. Let us understand what is that theorem. The perpendicular from the center of the chord to a chord bisects the chord. यानी ये फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं. एक सर्कल O is the center of circle. AB is a chord. From the center I am drawing a perpendicular. So what is the proof? Given thing ये होगा that I am drawing OC perpendicular to AB. So OC shall be perpendicular to chord AC. AB chord पे एक perpendicular segment draw किया. Now what is it asking in the question? The perpendicular from the center of the chord bisects the chord. To prove क्या करना है बच्चों पता है? You have to prove that AC is equal to BC. मतलब ये दो congruent parts है, ये prove करना है. So if I ask you how to prove it, it's not a big deal at all. Why not big deal? Because आपको अच्छे से प्रूफ करना आ जाएगा कि आपको दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे. कौन से दो ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल ACO and triangle BCO. So proving part is quite easy. I'll not mention over here. OA will be equal to this. Both are the radius of the circle. OC is a common side and they both have a perpendicular angle OCA and OCB. So if I have to write it properly, I can write it in these two triangles. My OA and OB equal. OC will be the common side and also my angle ACO shall be equal to angle BCO. इसे बोलेंगे हम OA is equal to radii of circle. उसके बाद ये common side and thus will have what we'll say each 90 degree. So by which test can you tell me in the chat? ये दो ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए? Which is the test? And henceforth by simplicity I have to only mention that my AC segment shall be equal to BC segment by corresponding pairs of congruent triangles. So students, this is of what should be provided in the bracket. Bracket में क्या fill करूँ? Give me the answer. Bracket में क्या आना चाहिए बोलो? SAS incorrect. See, how can you say SAS? SAS मतलब side के बाद एक angle, then a side. It should be in a continuum. No, three sides are not equal in the given figure. कुछ तो हटके वाला एंगल है, वो कौन सा है देखो. No, no, SSA is not. Okay, Yash have correct answered it correct. RHS. So by RHS rule, these two triangles are congruent. Don't forget all the properties of triangles. How we are proved congruent. ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए. चलो fine. So this is done. You have got your proof and finally you have got AC is equal to BC. तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि the perpendicular from the center of the circle to a chord bisects chord. मतलब आपने कभी भी सेंटर से एक कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर दी. फॉर एग्जांपल और एक फिगर लेते हैं, ये वाला एक ट्रायंगल, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है ऐसा. यहां से अगर मैं सेगमेंट ड्रॉ करता हूं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये इस कॉर्ड के टू पार्ट्स बनाएगा, इक्वल पार्ट्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द कॉर्ड, वो क्या करता है कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम. चलो, सो प्लीज नोट इट डाउन टेलिया क्विकली एंड फास्ट. Okay, we are done with this theorem. So perpendicular from the center to a chord bisects the chord. लेकिन इसका कॉन्वर्स एक थ्योरम है. क्या कॉन्वर्स थ्योरम है? लेट्स सी. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. यानी अब स्टोरी उल्टा है. Given things change होंगे. I'll write the given things. That O as a center, AB as a chord, and C is a point which intersects this chord. Okay. So if I
say that given thing is that AC is equal to BC. What is it saying? The line drawn through the center bisects the chord. यहाँ से जो line draw की है वो bisect करती है. तो ये जो line bisect करती है, you shall have to prove that angle OCA is equal to angle OCB. This you have to prove. So students, the same process, okay, my radius here, and again now it's your task. Also mention a construction here. Join OA and OB. You can mention in the previous theorem also. So proof में आपको क्या लेना पड़ेगा? Again you will go to the same two triangles and this will be your activity. आप लोगों ने करना है how to prove these two triangles as congruent, by which test, and also provide me, okay, you will tell me the test by which these two triangles are congruent, and then how you will get this OCA and OCB as a 90 डिग्री. So इससे 90 प्रूफ करने का स्टेप आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ. फर्स्ट टेक अ सिंपल टास्क, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने का टास्क कंप्लीट करके दो मुझे. इन योर बुक्स यू हैव टू डू इट. सो यू हैव प्रूव्ड इन दिस फॉर्म. जस्ट चेक आउट. आपने OA इक्वल टू OB लिया फर्स्ट पार्ट, देन यू हैव टू से OC इज इक्वल टू OC. फिर नेक्स्ट थिंग आप मुझे क्या बताओगे? Your given thing AC is equal to BC. Both triangles will be congruent by SSS axiom. तो अब ये आपके दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. तो टेल मी लेटर ऑन, कैन आई से नाउ OCA एंगल इज इक्वल टू OCB. ओके, बट हाउ टू प्रूव दिस इज अ 90 डिग्री एंगल? ये यहाँ पे नहीं दिया है. तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? OCA प्लस एंगल OCB, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, सो यू विल से 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, सो यहाँ पे फाइनली OCA प्लस एंगल OCA एक ही नाम लिखा जाएगा 180. सो 2 टाइम्स एंगल OCA शैल बी इक्वल टू 180. इसका मतलब सिर्फ OCA प्रूफ हो जाता है 90 डिग्री. ओके, OCA 90 है तो वैसे ही देयरफॉर OCB विल बी आल्सो 90 डिग्री. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर. दिस यहाँ पे एक चेंज कर देना. यू हैव टू प्रूव OCA इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस व्हाट प्रूफ में थोड़ा सा ऐड कर लो वो चीज. सो ये सेकेंड थ्योरम था कॉन्वर्स वाला. लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. सो प्लीज नोट इट डाउन दोज हु आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. ले लो जल्दी से. नाउ this is one application based theorem. There is only one and only one circle passing through three given non-collinear points. यानी आपको मैंने 3 non-collinear points बताए. So these are 3 points. From these 3 points there is only one circle which could pass in this sense. So we could get only a single circle passing through point this. Okay, so ऐसा एक सर्कल अप्रोप्रिएटली फिगर में ड्रॉ होगा. मीन्स यू शुड ओनली रिमेंबर कि कभी भी इफ एनी MCQ is been asked what is the number of circles you could draw from 3 non-collinear points, that will be the answer will be only 1. Okay, so please remember this is also a part of theorem that there is only one and only one circle passing through 3 non-collinear points. So let's move to the exercise. 10.3 exercise. If you want to note down the theorem, please note this theorem. Just take 2 minutes, fast, quickly. Note it down.
You have your construction material for the next question. Question number 2. You will need a circle and a compass. If you have your compass, that's enough. पेंसिल और कंपास है तो देखो चलो सभी लोग. गिव मी द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. पेंसिल एंड कंपास सबके पास है क्या? इतना चीज बता दो मुझे. एवरीवन. साक्षी, समीक्षा, विवेक, यश, विराज, श्रीजिनी. राउंडर एंड अ पेंसिल, दो चीज लगेगी. इतना रखो अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक. चलो. ओके, सो 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था. इजी एंड क्विक. आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन के साथ. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. मैं क्या करूंगा, एक सर्कल कंसिडर कर रहा हूं. चलो. यू हैव टू ड्रॉ सर्कल इन योर बुक. एवरीवन गो थ्रू विद द क्वेश्चन विथ मी. आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करोगे. I also mention the steps to draw. So ये steps follow करना है. सबसे पहले draw a circle. सर्कल की रेडियस कोई भी ले सकते हो आप. ओके. सो इन योर बुक्स प्लीज एवरीवन ड्रॉ एक सर्कल ड्रॉ करो. उस पे आर्क्स लेना है. टेक एन आर्क PQ on the circle. So once everyone do one thing, pay attention on the construction here. So PQ on the circle. एक आर्क लेता हूं मैं यहाँ पे. एक P और ये Q. तो ऐसा एक आर्क बनेगा, ऐसा इस तरह से. ओके. अब थर्ड स्टेप. आपका आर्क ड्रॉ हो गया. उसके बाद टेक अ पॉइंट R on arc PQ such that chords PR and QR are drawn. यानी R पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पे. ओके. तो आर्ट पॉइंट्स ऐसे लूंगा कि दो कॉर्ड्स ड्रॉ करूंगा. देखो फिगर में देखना है. ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया मैंने PR और दूसरा एक QR कॉर्ड ड्रॉ कर दिया. तो R पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने. दिस इज माय R पॉइंट. और इस R पॉइंट से PR एंड QR मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, कॉर्ड्स. कोई भी मेजर के कर सकते हो. इस PQR पे कहीं पे भी R पॉइंट लेना है और उसके बाद R PR ज्वाइन करना है और QR ज्वाइन करना है. ये बन गए आपके टू कॉर्ड्स. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. यू हैव टू फाइंड द सेंटर. यानी ये सेंटर कहाँ पे. उसके बाद जो PR है और QR है इनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो. आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन दी है, समझो ये. एंड आई एम टेलिंग यू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आप ऐसा परपेंडिकुलर मोर देन आप. सो दिस इज यहाँ पे आप डू यू रिमेंबर हम लोग क्या करते थे, मोर देन हाफ लेते थे और यहाँ पे मोर देन हाफ मार्क करते थे. फिर कंपास की नीडल इस पे रख के फिर हम लोग ऐसा एक आर्क मारते थे और ऐसा एक मारते थे और फिर हम लोग सेंटर पॉइंट निकालते थे. एवरीवन रिमेंबर दिस स्टेप्स. हाउ टू ड्रॉ PR. ये जो सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. यानी आपको क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है. सो फोर्थ स्टेप आई विल टेल यू. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ draw perpendicular bisectors of PR and QR respectively. So इन दोनों के perpendicular bisectors. Again I will tell you how to draw the perpendicular bisector. Very simple and easy. See here. जो हमारा segment है, this is the needle point you will keep here. The needle point take more than half. From here take a middle point, take more than half. फिर यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे और फिर एक आर्क की ऊपर ड्रॉ करोगे और देन यू विल प्लेस द नीडल एट दिस पोजीशन एंड ड्रॉ दिस वे आर्क.
So combining this will give you a perpendicular bisector which will be looking here, इस तरह से वो दिखाई देगा, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ओके, और उसके साथ ही आप क्यू आर का भी निकालोगे, तो सेकेंड बाइसेक्टर किसका निकालोगे, क्यू आर का निकालोगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस बाइसेक्टर्स, देखो ये जो बाइसेक्टर यहाँ पे क्यू आर का और यहाँ पे पी आर का ये इंटरसेक्ट होगा ओ पॉइंट पे। सो दिस बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओके, सो यहाँ पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, हेंस फिफ्थ स्टेप आई विल से ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से वी कैन ड्रॉ अ सेंटर ऑफ सर्कल। फाइन, चलो तो मैंने पूरा स्टेप बता देता हूं। पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद पी क्यू आर कंसिडर किया, पी क्यू आर पे आर पॉइंट लिया, उससे दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए पी आर एंड क्यू आर। ये दो कॉर्ड्स के क्या निकाले हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद ओ एक मीटिंग पॉइंट मिला, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ऑल दी स्टेप्स आर नॉट गिवन हियर एंड यू शुड नाउ डू इट इन योर बुक्स क्विकली एंड फास्ट, मेक इट आउट। यहाँ पे भी ये बाइसेक्टर है तो इसे ऐसे मार्क कर दो। चलो क्विकली अपने बुक्स में कर लो सब लोग। तो इस तरह से आपके ये आर्क्स बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, एंड आफ्टर दैट प्लीज ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड मार्क इज एट एज ओ, इसे ओ मार्क कर दे, यानी सेंटर ऑफ सर्कल मिल चुका है। सो डू इट इन योर बुक्स एवरीवन। चलो, so now let's move to the third question. If two circles intersect at 2 points, यानी आपको फर्स्ट सिचुएशन में मैंने बताया था, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स, पैर ऑफ सर्कल्स निकाले, जो थर्ड वाला ड्रॉ किया था वैसा ही कुछ ड्रॉ करना है। तो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यानी इस तरह वो सर्कल्स होंगे, एक और दो। ये क्या हो गए, these are the two circles which intersect at 2 points, that is a पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है b पॉइंट पे। ओके, prove that centers of this both the circle lie on the perpendicular bisector of common chord, यानी ये सेंटर है। लेट्स ड्रॉ दिस। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सो इसे एक ओ सेंटर बोलते हैं और यहाँ पे पी सेंटर बोलते हैं। तो सर्कल छोटा वाला जो है उसका सेंटर ओ, इसका सेंटर पी। उसके बाद मैंने रेडियस ज्वाइन की, इधर ओ बी रेडियस उधर ओ ए रेडियस। ओके, ये छोटे ट्राइंगल्स की छोटे सर्कल्स की रेडियस और लार्जर सर्कल की रेडियस ए पी एंड पी बी। ओके, और ये इसके बीच वाला जो कॉमन कॉर्ड है, दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड है, विच इज द कॉमन कॉर्ड, इसे यहाँ पे मेंशन कर लो, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। और इस क्वेश्चन को एल डी आर भी बोलना, बिकॉज इट कैन कम इन एग्जामिनेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। So what is it asking? The prove that the centers joining, prove that the centers. So centers means which one? O and P. These are the line joining the center. It lies on the, so it lie on the perpendicular bisector of common chord. AB is the common chord. उसके बीच में वाले perpendicular bisector यानी क्या, ये पार्ट इसको इक्वल है, ये प्रूफ करना है। यानी लेट्स मार्क इट एज अ ग्रीन मार्क या फिर रेड कलर से मार्क करके देता हूँ कि आपको ये देखना है कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये ऐसा, और सो दिस इज अ बाइसेक्टर एज वेल एज दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, दिस थिंग्स वी हैव टू प्रूव। और यहाँ पे इसे बोल दो सी। फिनिश्ड। सो यहाँ पे फिगर में आपको अच्छे से दो चीज प्रूव करना है। रेड पेन के साथ लिख के रखता हूँ, याद रखना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझता, बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर प्रॉपरली विद अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे ध्यान देना, मतलब बाइसेक्टर होना यानी ओ सी ए 90 प्रूव भी होना चाहिए एंड इट शुड ऑल्सो प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों चीज आपको प्रूव करनी है।
तब जाके हम इजीली बोल सकते हैं दैट द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड यानी आपके पास ये दो चीज प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस then let's start with the proof everyone। Shall we start with the proof? If you have understood the question, the major thing was to understand the question and figure how we have drawn because there is no figure in the question. So what we'll begin with, first thing हमारा simple task है ये AC is equal to BC proof करना है और दूसरा चीज है ACO is a 90 degree angle. I'll give you the simple funda to solve this. It's very easy, don't get confused, only the figure is something different which you are seeing on the screen, but figure को कोई टेंशन मत लो, let's understand. So given thing, I'll tell first AB is a common chord, intersecting the two circles with center O and O dash. Okay, O और P circles पे AB is a common chord. What do you have to prove? That the center lies on the perpendicular bisector of the common chord AB such that means ये प्रूफ करना है यानी इनडायरेक्टली इट इज सेइंग टू प्रूव दैट एंगल दैट सेगमेंट AC is equal to BC and you have to show that OCA is a perpendicular that is 90 degree. Now we'll start with the construction. What is the construction? Construction में हमें सिर्फ ये डॉटेड लाइंस का कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा. Join segment OA and OB and AP and PB बस. So उसके आगे हमें सिर्फ प्रूफ स्टार्ट करना पड़ेगा. Hope you have understood till here everyone. Just give me a reply till here. यहाँ तक समझ में आया? Okay then let's move. I'll begin with going in triangle AO. चलो proof. Consider triangle in triangle AOP and triangle. I'll just go to the fresh page instead of this incomplete page. Okay, come to a fresh page. In triangle AOP and triangle BOP. Once I'll show the figure. AOP triangle and BOP triangle. Just quickly you have to prove it congruent. पहले क्या बोलेंगे, ये दोनों स्मॉल यहाँ पे R1 R1 ये R2 R2, तो OA इक्वल टू OB एक चीज होगी. दूसरी चीज OP इज इक्वल टू OP. ओके, एंड AP इज इक्वल टू PB. एकदम सिंपल चीज बताना है आपको, क्या कि R1 इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू R2 एंड कॉमन साइड OP OP. यानी लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसे OA is equal to OB, radii of circle. So this is the radii of circle with center O. Okay. Second thing, PA is equal to PB, radii of circle, and common side क्या होगी, OP is equal to OP common side. चलो उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल AOP किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल BOP को, और इसका फैक्टर और रीजन क्या होगा, SSS एक्सियम. चलो यहाँ तक आपको होप सो समझ में आ गया होगा.
कि AOP इज इक्वल टू BOP, वेरी सिंपल, R1 इक्वल R2 इक्वल OP इज अ कॉमन साइड। उसके बाद सिपिसिटी से हम बोल सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू, देखो सिपिसिटी से क्या ये दोनों इक्वल होंगे, दिस एंड दिस विल बी इक्वल, यानी AOP इज इक्वल टू BOP। सिपिसिटी से हम AOP इक्वल टू BOP लिख सकते हैं। ओके, तो क्या AOP को दूसरा नाम देखो, AOP की जगह AOC लिखूंगा मैं, और यहाँ पे BOC, रीजन होगा O', C', P, कोलिनियर पॉइंट्स है, O', C है, मतलब मैंने क्या किया, AOP का नाम AOC किया, ऊपर BOP का नाम BOC किया। ओके, नाउ आई जस्ट प्रूव ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू BOC। Now I'll go in triangle AOC and triangle BOC। बहुत सिंपल है, फिर से छोटा वाला ट्राइंगल, हाइलाइटर यूज करता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, AOC एंड BOC बहुत इजी है, R1 इक्वल OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, OA इज इक्वल टू OB, ये इक्वल, कॉमन साइड दोनों में है, और ये जो एंगल अभी हमें सिपिसिटी से मिला है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वन पेयर, OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OC, फिर थर्ड थिंग एंगल AOC इज इक्वल टू BOC, SAS टेस्ट से ये AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, उससे आराम से हमें AC इज इक्वल टू BC मिलेगा। मीन्स आई राइट हियर, फर्स्ट थिंग R1 इक्वल टू R1, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, फिर ऊपर हमें मिला क्या है, AOC इज इक्वल टू BOC, उसके बाद हमारे पास OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड, इसको क्या बोलेंगे, रेडियाई। इस स्टेटमेंट नंबर 1 देते हैं एंड राइट इट फ्रॉम 1, और OC इज इक्वल टू OC क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। अच्छा यहाँ पे नाउ फिर से अभी हमारे पास ट्राइंगल AOC किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल BOC से, तो इसका मतलब कम टू द फिगर, AOC छोटा ट्राइंगल किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, BOC को, आराम से आप लिख सकते हो सिपिसिटी से, जो AC है वो BC को इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग पेयर्स, सिपिसिटी हो गया एक पार्ट प्रूफ। दूसरा टास्क आपको देता हूं, हाउ टू प्रूव दिस इज 90, वेरी सिंपल, ACO इज इक्वल टू BCO, यस और नो, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, ACO इज इक्वल टू BCO, ओके, फिर आप बोलोगे ACO प्लस BCO ये क्या होना चाहिए, 180 लीनियर पेयर एंगल्स, so it should say that एंगल ACO प्लस एंगल BCO को भी ACO बोल सकते हैं, ये टोटल 180 होगा, तो 2 टाइम्स एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। फिनिश्ड, यहाँ तक आपका ACO 90 आ गया, तो इसके आगे वाला स्टेप क्या रह गया, सो वन थिंग व्हाट यू हैव गॉट हियर इज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। From this 2 and 3, I can easily say that the proof statement center lies on the perpendicular bisector of the common chord। क्यों ये दो चीजें क्या बताती है, यही था इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, yes or no, yes or no students, hence I'll write, hence what I can say that OP lies on the perpendicular bisector of common chord। तो उसके लिए हमने क्या प्रूफ किया, दो चीज, एक तो वो जो कॉमन कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द होल सम। Okay, recalling once, whole sum. So, two circles intersecting at two different points prove that the center lies on the perpendicular bisector of common chord। So, common chord मैंने बताया आपको, AB एक common chord है, O एक सेंटर है, P एक सेंटर है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है OP,
ये ओपी कहां पे लाई करती है? इट लाइज एट दी एग्जैक्टली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। यानी मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए बी पे यहाँ पे सी ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी दिस टू थिंग्स यू हैव टू प्रूव, एंगल ओसीए इज 90 एंड एसी इज इक्वल टू बीसी। तो द फ्लो ऑफ क्वेश्चन इज वेरी क्विक एंड सिंपल। गिवन थिंग्स, प्रूफ, टू प्रूफ क्या था? center lies on the perpendicular bisector of common chord AB. That is, what does it mean? It means that you have to prove AC is equal to BC and also OCA is equal to 90. These two things you have to prove. चलो कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या होगा? दोनों रेडियस ऐड कर ज्वाइन कर लो, छोटे सर्कल की और बड़े सर्कल की रेडियस कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन दिखाना है, बस फिनिश। फिर प्रूफ में बहुत सिंपल था। तो पहले मैंने एओपी और बीओपी लिया, जरा फिगर में देखते। एओपी एओपी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल काफी आसानी से R1 R1 की पेयरिंग, R2 R2 की पेयरिंग, OP इज कॉमन साइड, बहुत सिंपल। SSS टेस्ट से बोथ विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, AOP BOP, बस सिंपल खत्म। उसके बाद सिपिसिटी से क्या मिला? दिस x and x मींस AOP इक्वल टू BOP, यानी सिपिसिटी से AOP इज इक्वल टू BOP मिला। तो AOC इज इक्वल टू BOC लिख सकते हैं। वाई? P की जगह C लिखा, बस। तो P की जगह C लिखा था, यानी AOC इज इक्वल टू BOC मिल गया। फिर हमने कौन सा ट्राइंगल चॉइस किया? छोटा वाला, दिस वन, दिस एंड दिस। इन स्मॉल ट्राइंगल AOC एंड BOC, अगेन R1 इक्वल टू R1, OA is equal to OA is equal to OB, OC is a common side and AOC is equal to BOC, proved in first part of CPCT. So यहाँ पे फिर से AOC triangle and BOC, the small triangles are again a congruent triangles. If they are the congruent triangles, you can say AC is equal to BC by corresponding pairs of congruent triangles CPCT से, and also you can say OCA is equal to OCB. सो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल, और ये दो सेगमेंट्स इक्वल हो गए। अब आपके पास सीयर ACO एंड BCO आर इक्वल, तो ये ACO और BCO इक्वल है, तो लीनियर पेयर भी है ये स्टेटमेंट्स। तो ACO प्लस BCO 180, तो 2 टाइम्स ACO इज 180, ACO इज 90, यानी यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 90 हो गया। तो आपको इनडायरेक्टली ये प्रूव करना था AC इज इक्वल टू BC एंड OCA इज 90 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड ओवर हियर। सो इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट से आराम से बोल सकते हैं OP is lying on the perpendicular bisector of the common chord AB. Okay, now hope you have understood. Please note it down. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर अपडेट्स।